السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں فرزانہ صفدر۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں کل صبح پولیس اکیڈمی کے 5ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ سیریمنی کا انعقاد ہوا۔ اس سال پاس آؤٹ کرنے والے کینڈیڈیٹس کی کل تعداد 100 ہے۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ افغانستان کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اقوام متحدہ اور دیگر عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر افغانستان اور دنیا کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا پابند ہے۔ یورپی اتحاد روس یوکرین جنگ کا پہلا سال مکمل ہونے کے موقع پر ماسکو کے خلاف مزید پابندیاں لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 24 فروری کو اس جنگ کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ اور قطر کی بیچ والی بال ٹیم نے برازیل کی ٹیم کو ایلیٹ 16 عالمی ٹورنامنٹ کے افتتاحی راؤنڈ کے ایک میچ میں کل شام 1 کے مقابلے میں 2 گیم سے شکست دے دی۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں کل صبح پولیس اکیڈمی کے 5ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ سیریمنی کا انعقاد ہوا۔ اس سال پاس آؤٹ کرنے والے کینڈیڈیٹس کی کل تعداد 100 ہے، جن میں فلسطین اور اردن کے طلبہ بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی اور متعدد شیوخ اور وزراء نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمانوں میں مصر کے وزیر داخلہ جنرل محمود توفیق، جمہوریہ جیبوتی کے وزیر داخلہ جناب سعید نو حسن، سعودی عرب کی وزارت داخلہ میں انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ہشام بن عبد الرحمن الفالح اور کئی برادر اور دوست ملکوں کے اعلیٰ پولیس حکام شامل ہیں۔ اسی طرح ملک میں موجود سفارتی مشنوں کے سربراہان، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، امیری گارڈ، اسٹیٹ سیکیورٹی اور لخویا کے اعلیٰ افسران اور دیگر ریاستی مہمان بھی پاسنگ آؤٹ سیریمنی میں شریک ہوئے۔ تقریب کے آخر میں پاس آؤٹ کرنے والے افسروں نے صاحب سمو امیر کے ساتھ وفاداری، رازداری اور وطن کے ساتھ محبت کی قسم اٹھائی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ پولیس اکیڈمی کے 5ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ سیریمنی کے موقع پر مصر کے وزیر داخلہ جنرل محمود توفیق، جمہوریہ جیبوتی کے وزیر داخلہ جناب سعید نو حسن، سعودی عرب کی وزارت داخلہ میں انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ہشام بن عبد الرحمن الفالح نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کے ساتھ قطر کے دورے پر آئی ہوئی امریکی وزارت خارجہ میں سیاسی امور کی سیکرٹری محترمہ وکٹوریہ نولینڈ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور ان کو بالخصوص توانائی کے شعبے میں فروغ دینے کے ذرائع، خطے اور دنیا کی تازہ صورتحال، خطے کی سیکیورٹی، مسئلہ فلسطین، افغانستان کے حالات اور روس یوکرین جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد نے کینیڈا اور یونائیٹڈ کنگڈم کے تعاون سے اقوام متحدہ کی نائب سیکرٹری جنرل محترمہ امینہ محمد اور مستقل مندوبوں اور افغانستان کے دوست اور افغانستان میں خواتین کے دوست نامی گروپوں کے ممبر ملکوں کے نمائندے کے درمیان ایک توسیعی ملاقات کا اہتمام کیا تاکہ وہ حال ہی میں کیے گئے افغان دورے کا حال احوال بیان کر سکیں۔
अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब शेखा आलिया बिन्त अहमद बिन सैफ अल सानी ने मुलाकात के आगाज में कहा कि ये मुलाकात शुरका और उसके वक्त के एतबार से और हालिया दिनों में तालिबान की जानिब से ख़वातीन के खिलाफ जारी करदा फैसलों और अफगानिस्तान के मौजूदा इंसानी और सिक्योरिटी हालात को देखते हुए इंतहाई अहम है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की नायब सेक्रेटरी जनरल के दौरा अफगानिस्तान की तारीफ की और उसको जुर्रतमंदाना करार दिया और सलाह मशवरे और राब्ताकारी के लिए कतर के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया। शेखा आलिया अल सानी ने एक बार फिर कहा है कि कतर अफगानिस्तान के बरादर अवाम के साथ खड़ा है और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर अफगानिस्तान और दुनिया को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने का पाबंद है। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की नायब सेक्रेटरी जनरल ने तामीरी कोशिशों और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ शराकत पर रियासत कतर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गान अवाम के साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे। न्यूयॉर्क में कतर के मुस्तकिल वफ़द के हेडक्वार्टर में होने वाली इस मुलाकात में कतर के अलावा अमरीका, तुर्की, इंडोनेशिया, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूरोप और वसी एशिया के मुतादिद मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो सन 2030 के पायदार तरक्की के प्रोग्रामों को कामयाब बनाने और मौजूदा चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ शराकत को मजबूत बनाना चाहता है। वज़ारत ख़ारजा में बैनुल अक़वामी ताउन के इदारे के डायरेक्टर जनाब शाहीन अली अलकाबी ने अक़वाम मुत्तहिदा के ताबे समाजी और इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। काउंसिल की सदर मोहतरमा लाशीदा स्टोफा और अक़वाम मुत्तहिदा की नायब सेक्रेटरी जनरल मोहतरमा अमीना मोहम्मद भी इजलास में मौजूद थीं। ये इजलास न्यूयॉर्क में हुआ। जमहूरिया ताजिकिस्तान के नायब वजीर खारजा जनाब हुसैन ज़ादा मुजफ्फर महमूद ने मुल्क में कतर के नए सफीर जनाब मुबारक बिन अब्दुर्रहमान अल नसर से उनकी असनाद सिफारत की कॉपी वसूल की। अरबी नस्ल घोड़े के तीसरे कतारा आलमी फेस्टिवल के मौके पर डाक टिकटों और कदीम करेंसी को जमा करने के शौकीन अफराद के कतरी सेंटर ने एक नुमाइश लगाई है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की ऐसी डाक टिकट दिखाई जा रही हैं जिनमें घोड़ों और शिकार की खूबसूरत तरीन तस्वीर हैं। ये नुमाइश बिल्डिंग नंबर 22 में लगाई गई है और आवाम के लिए खुली है। फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा जनाब रियाज अल मालकी ने यूरोपीय इत्तेहाद से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली ज़्यादतियों को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे। उन्होंने खबरदार किया है कि इन ज़्यादतियों से दो रियासती हल का फार्मूला कमज़ोर हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में अमन अमल के लिए यूरोपीय यूनियन के खुसूसी एलची के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने यूरोपीय इत्तेहाद के मसले फ़लस्तीन के हवाले से काम करने और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर यूरोपीय एहलकार ने कहा कि यहूदी बस्तियों की आबादकारी और दो रियासती फार्मूले के मुतालिक यूरोपीय इत्तेहाद का मुस्तकिल मौक़िफ़ है जिसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं आई है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब जनीन पर इसराइल के हमले के बाद मगरबी किनारे और मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दिस में हालात कशीदा हैं। इसराइली हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। यूरोपीय इत्तेहाद
रूस यूक्रेन जंग का पहला साल मुकम्मल होने के मौके पर मॉस्को के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाने का इरादा रखता है। 24 फरवरी को इस जंग को एक साल मुकम्मल हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन की सदर मोहतरमा उर्सुला ने यूक्रेन के सदर के साथ दाल हुकूमत में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम 24 फरवरी को इस जंग का पहला साल मुकम्मल होने के मौके पर रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस पर आयद मौजूदा पाबंदियों से उसकी मईशत कमजोर हो रही है। उनका कहना है कि रूसी पेट्रोल की ज्यादा से ज्यादा कीमत की सतह मुतय्यन करने से रूस को रोजाना तकरीबन 160 मिलियन यूरो का नुकसान हो रहा है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर की बीच वॉलीबॉल टीम ने ब्राजील की टीम को एलीट 16 के आलमी टूर्नामेंट के इफ्तिताही राउंड के एक मैच में कल शाम एक के मुकाबले में 2 गेम से शिकस्त दे दी। शरीफ यूनुस और अहमद तीजान पर मुश्तमिल कतरी टीम आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। ये टूर्नामेंट स्पायर में हो रहा है और 5 फरवरी तक जारी रहेगा। कतर के मशहूर कार ड्राइवर नासिर सोहरा अल अतिया हाइल इंटरनेशनल रैली के इब्तिदाई राउंड्स में सबसे आगे हैं। हाइल इंटरनेशनल कार रैली बाहा क्रूज कंट्री के वर्ल्ड कप 2030 का पहला राउंड और मशरिक वस्ता कप का इफ्तिताही राउंड मानी जाती है। इसी तरह ये रैली सऊदी टोयोटा सहराई रैली चैंपियनशिप का भी इफ्तिताही मरहला तस्लीम की जाती है। 3 मुल्की खवातीन T20 इंटरनेशनल सीरीज का फाइनल मुकाबला कल जनूबी अफ्रीका और भारत की खवातीन टीमों के दरमियान खेला गया। जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीम ने फाइनल मैच 5 विकेटों से जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पहले खेलते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने 4 विकेटों पर 109 रन बनाए। जवाबन साउथ अफ्रीका ने 18 ओवर्स में ही हदफ पार कर लिया। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब सुबह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मौजूदगी और सरपरस्ती में कल सुबह पुलिस अकेडमी के 5वें बैच की पासिंग आउट सेरेमनी का इनेकाद हुआ। इस साल पास आउट करने वाले कैंडिडेट्स की कुल तादाद 100 है। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो अफगानिस्तान के बरादर अवाम के साथ खड़ा है और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर अफगानिस्तान और दुनिया को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने का पाबंद है। यूरोपीय इत्तेहाद रूस यूक्रेन जंग का पहला साल मुकम्मल होने के मौके पर मॉस्को के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाने का इरादा रखता है। 24 फरवरी को इस जंग को एक साल मुकम्मल हो जाएगा। और कतर की बीच वॉलीबॉल टीम ने ब्राजील की टीम को एलीट 16 आलमी टूर्नामेंट के इफ्तिताही राउंड के एक मैच में कल शाम एक के मुकाबले में 2 गेम से शिकस्त दे दी। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने ख़िताम को पहुंचता है। न्यूज़ एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर जावेद हुसैन और फरजाना सफ्तर को यहीं पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यूरियल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।